بیان کی مومنین کی۔ پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ قرآن تو اس وقت قرآن نہیں تھا، میں اس کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، میں اس کو علی کا فرمان سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ رب کی اپنی مرضی، پتہ نہیں ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ یہ بچپن سے یعنی پیدا ہوتے ہوئے لوح محفوظ پہ محفوظ قرآن کو پڑھ رہے تھے، یا ذات توحید کو ان کا کلام اتنا پسند تھا کہ انہوں نے بچپنے میں کلام کہا، رب نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں، اور میں اس چیز کو ابھی تک حل نہیں کر سکا کہ یا یہ ماننا پڑے گا کہ علی ابھی پیدا ہوئے اور ابھی اتنی نگاہ بلند ہے کہ لوح محفوظ پہ موجود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی علی کی فضیلت ہوگی، یا یہ کہو کہ علی کا کلام رب پہ اتنا پسند تھا، علی نے پڑھا، رب نے اس کو قرآن بنا دیا، اور شاید ان دونوں کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اور اگر صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ بیگم والوں کی طبیعتوں سے بڑے اچھے طریقے پہ آگاہ ہوں، آپ نہیں بولیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ بولیے، میں جہاں ضرورت ہوتی ہے صلوات پڑھا کے خود آپ سے بلوا لیتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ خاموشی سے سنتے رہیے، میں بالکل گھبراؤں گا نہیں، میں اپنا پیغام جو ہے وہ دوں گا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس حدیث پہ کبھی کبھی میں بحث کرتا ہوں تو میں اس حدیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں، میں کہتا ہوں رسول نے کس انداز میں فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، بات وہی ہے، لفظ دو ہیں اور جملے بھی دو ہیں۔ ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں علی مبتدا ہے، قرآن خبر ہے، اور دوسرے جملے میں قرآن مبتدا ہے اور علی اس کی خبر ہے۔ مبتدا کی خبر نہ ہو یا خبر کا مبتدا نہ ہو جملہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی اگر علی نہ ہو، مبتدا علی نہ ہو تو قرآن مکمل نہیں ہوتا، اور اگر علی مبتدا نہ ہو تو خبر کے طور پر قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مکمل تبھی ہوتا ہے جب علی ابتدا میں بھی ہو، انتہا میں بھی ہو۔ لیکن ایک دلچسپ چیز یہاں یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن کی اس طرف بھی علی ہے، قرآن کی اس طرف بھی، درمیان میں علی، علی کے درمیان میں محفوظ ہے تو قرآن۔ ہمارا علی کو قرآن پڑھا، مومنوں کی تعریف کی، قد افلح المومنون، مومنون فلاح پا گئے۔ میں نے یہ گفتگو 3-4 دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بھی اپنے چینلز میں سے کی، فلاح کا ایک اصول بتلا گئے علی، 7 چیزیں کام ساتھ کرنے والے کو ہم مومن کہیں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ علی کا یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے، ان کی نماز کی حالت کا ذکر ہے، اور یہ آپ کے امام کا بھی کمال ہے کہ اس کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں امام کی نماز کا ذکر ہے یا مومن کی نماز کا ذکر ہے۔ اور جب یہاں یہ سورہ پڑھا جناب امیر علیہ السلام نے، یہ آیات پڑھی، جناب پیغمبر اکرم مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی انت امیرہم، یا علی انت امیرہم وانت دلیلہم، ان کا امیر بھی تو ہے اور ان کو مجھ ذات خدا تک پہنچنے کی دلیل بھی تو ہے۔ اور یہی جو 70 فضائل ہیں، ان فضائل میں سے فضیلت نمبر 67 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ نہ پیغمبر کی زندگی میں اور نہ پیغمبر کی زندگی کے بعد کوئی امیر المؤمنین کہلوانے کا حقدار ہے۔ یہاں علی پیدا ہوئے ہیں، انت امیرہم، یا علی آپ ان کے امیر ہیں۔
अज़ीज़ान गिरामी, बात को समेट लूं, ये उसूल बतला गया अली कि अमीर कौन होता है। मैं तर्जमा भी पूरा नहीं करता, इन आयात को जाके देखिएगा। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 की ये पहली 11 आयात पढ़िएगा। अगर हम अली वाले हैं तो जरूरी है ना कि हम अली से भी तो कुछ लें। क्या लें? मुश्किलों का तज़किरा हमारी मजालिस और महफ़िल में होता है। अजीजों, कभी ये भी देखा है, डॉक्टर हज़रात बैठे होंगे, अगर बीमारी की पहचान ही नहीं हो तो इलाज कैसे होगा? आप आइए, मैं अपने आप से पूछता हूँ, मेरी मुश्किल क्या है कि मैं मुश्किल कुशा अली को पुकारूं? अगर मैं अपनी 2 रोटियों के लिए और 4 दीवारों पे छत के लिए अली को पुकारता हूं तो ये मेरी कमजोरी होगी। इसलिए कि मैं अगर अली को अपनी रोटियों के लिए, लिबास के लिए, इसलिए कि अली वाले तो वो थे। खुद अली नाजुल बलागा में फरमाते हैं कि इन्ना इमामकुम कद इक्तफा मिन दुनिया हो बितिमरही व मिन तौमिही बिकुरसे। और अली को देखो, आपका अली तो वो है कि भरी दुनिया से 2 खुश्क रोटियों पे गुजारा कर गए और भरी दुनिया में से, लिबास में से 2 फटी पुरानी चादरों पे गुजारा कर लिया। और जनाब अमीर फरमाते हैं नाजुल बलागा में कि मुझे पैबंद लगाने वाले ने कहा, या अली अब और जगह ही नहीं जहां मैं पैबंद लगाऊं। लेकिन मुझे अली से इस लिबास से हया नहीं आती। अब अली की वो रोटी, अली का ये लिबास, अब मैं कहूं कि मैं, या अली मुझे रोटी दे और या अली मुझे कपड़ा दे, या अली मुझे मकान दे। अभी मकान में क्या कहूं? जनाब सलमान फारसी जिसकी निदा पे मदीना छोड़ के मदाइन अली जा रहे थे, वो सलमान फारसी कहता है मेरे पास कुल असासा क्या है? मेरे पास बिछाने के लिए एक बोरी है जिसको आपने खच्चर के ऊपर उसके के तौर पे भी डालता हूं, सोने के लिए भी उसे इस्तेमाल करता हूं, नमाज के तौर पे उसे इस्तेमाल करता हूं, अगर सर्दी हो तो उसे ऊपर डालता हूं। एक प्याला है जिसमें खाता हूं और एक लोटा है जिससे तहारत करता हूं। ये कुल असासा है जनाब सलमान फारसी का। ऐसे असासे वाला बुलाता है, या अली मेरा वक्त अखीर है। अली फरमाते इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। अब मुझे बतला मैं क्या मांगू अली से? मैं जो मांगता हूं अपने तौर पे अपने अजीज जवानों की बतलाता हूं, तन्हाई में बैठ के बस एक चीज मांगता हूं, तू जिसका वली है मुझे उसका बना दे। तू जिसका वली है मुझे उसका बना दे। इसलिए कि जब हम उसके हो जाएंगे तो फिर अली फखर यही करते हैं कि मेरा फखर ये है कि मैं उसका हूं। आइए कोशिश करें, अली से क्या लेना है? मुश्किल पहचानिए। मुझे ताज्जुब हुआ, हमारी इतनी खूबसूरत इमाम बारगाह के दरवाजे पे इश्तिहार लगा हुआ है दर्जनों उलमा के दस्तखतों के साथ, तौहीद हकीकी। जाइएगा बाहर पढ़िएगा, उलमाए शिया पाकिस्तान क्या है बयान हो रहे हैं जनाब? तौहीद हकीकी। क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तौहीद आज उलमा दस्तखत करेंगे, बतलाएंगे, तब हम तौहीद को मानेंगे। जब हम आज के उलमा के दस्तखत से तौहीद मानते हैं तो फिर क्या ये तौहीद अली नहीं है? इसलिए कि नाजुल बलागा भरा पड़ा है तौहीद से। सुन्नी उलमा कहते हैं, चौथे इमाम के बारे में मिस्र के एक बड़े आलिम ने कहा था कि अगर ज़ैनुल आबिदीन का ये कलाम ना होता तो हमें खुदा से बातें करने का ढंग ही ना आता। सुन्नी उलमा इब्न अबिल हदीद 20 जल्दों में नाजुल बलागा की शरह लिखते लिखते कहता है कि दुनिया वालों को अल्लाह का तारुफ ही हासिल ना होता अगर अली ना होते। और उसने लफ्ज़ लिखे सुन्नी आलिम ने कि असहाब को इस अंदाज से गुफ्तगू का तरीका ही नहीं पता था जिस तरीके से अली ने अल्लाह का तारुफ कराया। मुश्किल हमारी ये है, हम रब से दूर हैं। या अली हमारी मुश्किल हल कीजिए। खुशू क्या है? खुशू ये है, उलमा फरमाते हैं, लोगत फरमाते हैं, खुशू ये है कि जब आप नमाज में हो तो दिल में बस खुदा हो और आज़ा में झुकाव हो। हम अली वाले हैं तो देखना है बस अली है दिल में या कोई और भी बसता है। बस मैं समेट रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। आया हमारे दिलों में जी चाह रहा था नाजुल बलागा के कुछ जुमलात नकल कर दूं। पढ़िएगा घर जाके खत नंबर 45 जहां उस्मान इब्न हुनैफ को जनाब अमीर इस्लाम ने खिताब किया और वहां फरमाते हैं
इफ़्फ़तिन व सिदार, मुझ अली की मदद करो। आप पाकीज़ा बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुझ अली की मदद करो। और खत नंबर 69, हारिस हमदानी या हार हमदानी मैं यमुत यरानी, वो प्यारा साहबी अली का जिसको जनाबे हारिस हमदानी फरमाते हैं, हारिस जो दुनिया से मेरा मरता है सबसे पहले मेरी ज़ियारत करता है। या हार हमदानी मैं यमुत यरानी, जो मरता है मुझे देखता है। वहां पहला जुमला फरमाया, हारिस वतमस्सक बिहब्लिल कुरान, अल्लाह की कुरान की इस रस्सी को मजबूती से थाम ले। मेरा अली कहते हैं, कहां है कुरान में अली? मैं कहता हूं कुरान में एक जगह पे अली नहीं, अली माल कुरान वल कुरान माली। अली कुरान के हर सूरा में, अली कुरान के हर पारे में, अली कुरान की हर आयत में, अली कुरान के हर जुमले में, अली कुरान के हर लफ्ज में, अली कुरान के हर ज़बर ज़ेर पेश में, अली कुरान के हर नुक्ते में अली अली अली। कुरान अली के साथ। अब अली हमारे सामने नहीं है, कुरान हमारे सामने है। क्या हमारी जिंदगियां कुरान के फरमान के मुताबिक ढली हुई हैं? तो मान लो कि अली के मुताबिक ढली। और अगर हमारा हर काम या हर हमदान मैं यमुत यरानी तमस्सक बिल कुरान, कुरान को मजबूती से थाम लो। अज़ीज़ों, ये चीजें इनकी तरफ भी गौर किया कीजिए। इब्न अबील हदीद नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 218 के बारे में कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इस खुतबे को 1000 बार पढ़ा है। खुतबा नंबर 218। जॉर्ज जुर्दाक, इसकी एक किताब है रवाए नहजुल बलागा, वो कहता है मैंने पूरे नहजुल बलागा को 200 बार पढ़ा है। ईसाई कहता है मैंने पूरे नहजुल बलागा को 200 बार पढ़ा है। मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूं, मैंने नहजुल बलागा को कितनी बार पढ़ा है? कलाम मेरे अली का, पढ़े दूसरे, फिर कहूं या अली मैं तो तेरा। इलाही हमें अली का बना दे और अली के जरिए खुदा का बना दे। हमारी जिंदगी का हर लम्हा अली के फरमान के मुताबिक। और फिर जहां अली अली कहना मुश्किल हो, खबरदार ये मत सोचा कीजिए कि किसी आलिम ने, और मत इजाजत दीजिए किसी को अगर कोई कहे कि अली अली की जरूरत नहीं, अभी कुरान की तिलावत करो। नहीं, हम पहले अली अली करते हैं। और मेरा अपना अकीदा यह है, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूं। हमारी नमाज मेराज तब बनती है जब पहले अली अली हो। खूब फरमाया जाकिर साहब ने, शायर ने, कि आज सजदे हुसैन ये ऐलान कर रहा है कि आओ देखो कामयाब कौन हुआ, नाकाम कौन हुआ। ये सजदे खुद हुसैनियत की एक निशानी है, लिहाजा उनको अपनाइए। परवरदिगार हमारी जिंदगी का हर लहज़ा अली के हुक्म के मुताबिक तेरी तौहीद के इताअत में गुजरे और हम तुझे ऐसे पहचाने जैसे तेरा अली चाहता है, और हम फिर तुझे ऐसे पहचाने जैसे तेरी ज़ात चाहती है। हमारे लिए भी फ़ख्र तेरी उबूदियत हो और हमारे लिए भी इज़्ज़त तेरी रुबूबियत हो। परवरदिगार ये जश्न ये जहाँ कहीं भी होते हैं ये यूं ही और फलते फूलते रहें, ये खुशबू दूसरे मकामात पे भी जाती रहे। जो इस साई में मशगूल है परवरदिगार, वो इसको यूं और बढ़ाते रहें। और ये चिराग लेके, ये अंधेरी दुनिया है, इन्नल हुसैन मिसबाह हुदन व सफीनत नजात, ये हुसैन जो हमारे हाथ में है, जिसका दामन हमारे हाथ में है, वो चिराग है। और दुनिया गुनाहों और जुल्म, और कहीं बहरैन की सूरत है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं इराक है, ये दुनिया जुल्म से भर चुकी है। परवरदिगार इस चिराग हुसैनी के जरिए से हम इस रोशनी को फैलाते रहें और तेरे बार में फरजंद के आमद पे हम उसके इस्तेकबाल के लिए आमादा हों। वली बरहक के ज़हूर